Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am going to continue our topic, that is the power and the function of the president. It is related to the chapter number 19, that is the union government, the executive. So come on to the next. The president of India has executive power. It means to appoint someone. It means appointing power. Next is legislative, to make a law. Judicial, judicial power. Financial, related to money. Emergency power, that is in emergency order. Come on to the number 1, executive power. Numbering it. First one is executive, second one is legislative, and third one is financial, fourth judiciary, fifth emergency. Come on to the next. So let's the first point, executive powers. Being head of the union executive, all the administrative decisions, it means all the governmental decisions are taken under his or her name, She or he make all the important appointments including those of the Prime Minister, Council of Ministers. It is a example कि प्रेसिडेंट जो है वो किनका किनका सिलेक्शन कर सकते हैं, किनको किनको अपॉइंट कर सकते हैं. प्राइम मिनिस्टर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं जिन पे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं. एंड जितना भी जो भी डिसीजन लिया जाता है, ऑल द डिसीजन आर टेकन इन हर और हिज नेम. द प्रेसिडेंट ऑल्सो अपॉइंट द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, नेक्स्ट इज फिनांस कमीशन. इट इज सी और ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्स. इंडियाज़ का डिफेंस फोर्स का जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. डिफेंस फोर्स का सुप्रीम कमांडर मीन्स आर्मी, नेवी एंड एयर. ये तीनों फोर्स का, ये आर्मी, एयर फोर्स एंड नेवी फोर्स, तीनों का जो हेड, जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है. अभी एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है इंडियन डिफेंस फोर्स में, दैट इज़ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी. ओके, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिनका हेड बिपिन रावत को चुना गया है. लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट. सी और ही has the right to be kept informed about all the decisions of the council of ministers through the prime minister. It means president also taken all the decision which advised by the prime minister, which is given by the council of minister. council of minister जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को देते हैं वो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं एंड देन प्रेसिडेंट accept it. Next is legislative power. Now come on to the legislative power. Number 2 and the number 3 is financial power. The president or Rashtrapati is an integral part of Indian Parliament. It is an important part of Indian Parliament. The president can summon, arrange a meeting, prorogue, suspend someone, and address the two houses of the Parliament and combine meeting of the two houses of the parliament. All these are the work of president. Every year the first session of the parliament begins with her or his address. It means the first session of every year was started or begins with the concern of the president. She or he can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its nominal term if she or he is advised to do so by the prime minister. लोकसभा को डिसॉल्व करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है, बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे तब. डिसॉल्व करना मतलब लोकसभा का फिर से चुनाव होना. बिफोर इट्स नॉमिनल टर्म, द नॉमिनल टर्म इज 5 years. नेक्स्ट वन इज वाई प्राइम मिनिस्टर टेल द प्रेसिडेंट टू डू सो. बिकॉज इफ प्राइम मिनिस्टर फील दैट देयर मिनिस्ट्री did not work properly or will not work continued,
देन प्राइम मिनिस्टर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट दैट टू डिसॉल्व द लोकसभा। या फिर हो सकता है लोकसभा के किसी भी मंत्री या कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी हैं उनमें से कुछ के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया हो, कोई उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस लगा दे कि उनके ऊपर हमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो काम कर सकते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि पूरा का पूरा जो मिनिस्ट्री होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर एक हटेगा तो सारे को एक साथ रिज़ाइन देना होगा। नेक्स्ट वन इज नो बिल पास्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी बिल दोनों हाउस में से किसी के द्वारा पास नहीं हो सकता है। कब तक? बिकम्स अ लॉ विदाउट हर और हिज कंसेंट। तब तक वो बिल, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल पेश होता है और फिर वो आगे बढ़ता है और वो लॉ बनता है, फिर वो एक्ट बनता है। तो सबसे पहले कोई भी बिल अगर ऑर्डिनरी बिल है तो या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट अगर कोई बिल मनी बिल है, ओके, इट मीन्स मनी से रिलेटेड है, कहीं पे किसी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, खर्च करने से रिलेटेड है कि हम इस फील्ड में इतना खर्च करने वाले हैं, तो वो अगर मनी बिल है तो वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनी मैटर जो होता है वो पब्लिक से रिलेटेड होता है, पब्लिक का पैसा होता है और वो पब्लिक के लिए यूज़ होता है। तो दैट्स वाई वो लोकसभा डिसीजन लेते हैं। क्यों लोकसभा क्यों इंट्रोड्यूस होगा? क्योंकि लोकसभा के जितने मेंबर हैं वो पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। दैट्स वाई लोकसभा डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दी पीपल ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज, तो कोई भी बिल लोकसभा में पेश हो या राज्यसभा में, फिर वो या तो लोकसभा के पास जाएगा या तो राज्यसभा के पास। अगर पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो फिर लोकसभा के पास, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा के पास। बट अगर कंबाइंड सेशन में मीटिंग में बैठ के अगर कोई बिल पेश होता है और ये दोनों अगर उस बिल को मेजॉरिटी के साथ पास कर देते हैं तो बिल तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव पावर जब तक उसके ऊपर साइन नहीं करेंगे तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। एंड प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद वो जाता है जुडिशरी के पास। क्यों? तो सबसे पहले लेजिस्लेचर, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने मंत्री होंगे वो, फिर वो जाएगा एग्जीक्यूटिव के पास, इट मीन्स द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट साइन कर दिए, फिर वो जाएगा नेक्स्ट जुडिशरी। दैट्स वाई, और in previous we had already read about the organs of the government, that is legislature, executive and finally lastly judiciary, that all the three are the organs of the government. But here we have one kind of questions or one is queries, that is what are the levels of the government. So it is also three. The three levels of government are central government, state government and local self government, which work in towns or cities or in village. In towns or in cities it is municipality and in village it is village panchayat. Okay, so come on to the next. Prior approval of the president is essential before a money bill is introduced in लोकसभा। देखो यहाँ पे हिंट दे दिया है, यहाँ पे देखेंगे कि मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, मतलब मनी बिल जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में पेश होता है, फिर उसके बाद वो दूसरे से कंसर्न के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मनी बिल पेश करने से पहले प्रेसिडेंट के पास तो ये बाद में जाएगा ही जब वो लॉ बनेगा मनी के ऊपर, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट से आपको अप्रूवल लेना होगा कि आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इन दी लोकसभा इन दिस सेशन और इन दैट सेशन। किसी सेशन में अगर आप चाहते हैं कि मनी बिल इंट्रोड्यूस करना तो उससे पहले आपको प्रेसिडेंट को पहले अप्रूवल लेना होता है, प्रायर अप्रूवल होना चाहिए। नेक्स्ट इज 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम अमॉन्ग द डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स etc। ये सब फील्ड से 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। इट मीन्स अभी राज्यसभा का जो मेंबर है वो 250 है, तो उसमें से 238 मेंबर स्टेट एंड यूटीज से, बाकी के 12 मेंबर डिफरेंट फील्ड से। सी और ही कैन ऑल्सो नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा। कहता है 2 एंग्लो इंडियन भी लोकसभा में ये अपॉइंट करते हैं। कब?
इफ़ द कम्युनिटी इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, जब कोई कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं होता है तब, मतलब जब सीट वैकेंट रह जाता है तो 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए अपॉइंट किया जाता है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंग्लो इंडियन को। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो 12 मेंबर राज्यसभा में और 2 मेंबर लोकसभा में अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिनेंशियल पावर। द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। एनुअल बजट हर बार पार्लियामेंट में ही प्रेजेंट होता है। एंड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सिमिलरली ऑल मनी बिल ऑल्सो रिक्वायर हर और हिज अप्रूवल। ये हम लोग सेकंड वाले में लेजिस्लेटिव पावर पढ़ चुके हैं। मनी बिल ऑल्सो रिक्वायर हर और हिज अप्रूवल बिफोर दे आर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अगर आप मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। सी और ही हैज़ द पावर टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द फिनांस कमीशन, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन केस सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू गवर्नमेंट आउट ऑफ कंटीजेंसी फंड टू मीट द सिचुएशन। मतलब जो रिजर्व फंड होता है उसमें से वो फंड प्रोवाइड कर सकते हैं किस चीज़ के लिए, टू मीट द सिचुएशन। मतलब कोई अगर इमरजेंसी कंडीशन आ गया है या इमरजेंसी सिचुएशन, उस सिचुएशन को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट फंड से प्रेसिडेंट मनी अप्रूव कर सकते हैं। इट इज़ ओनली द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पावर दैट प्रेसिडेंट का पावर होता है कि वो मनी प्रोवाइड कर सकता है कंटीजेंसी फंड से एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल सिचुएशन। नेक्स्ट इज नंबर 4 जुडिशियल पावर and number 5 is emergency power. So the judicial power, all the judges of the Supreme Court and the High Court including their Chief Justice are appointed by the President. ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। On appeal for mercy, the President has the power to reduce the sentence or grant pardon or amnesty. He or he can change the death sentence or can postpone it. So if anyone punished by the court, then it is only in the hand of president that or has the power to reduce the sentence or grant pardon. reduce the sentence means to be until death वाला जो सज़ा होता है वो, या फिर ग्रांट पैर्डन और एमनेस्टी जनरल पैर्डन। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो किसी के सज़ा को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको माफ़ कर सकते हैं, उसको उसके फांसी तक के सज़ा को वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो फांसी के सज़ा को रिड्यूस करके किस में चेंज करेंगे? ऑब्वियस लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में या फिर फॉर सम ईयर। सी और ही कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट ऑल्सो। ये डेथ सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं या तो पोस्टपोन भी कर सकते हैं। चेंज करना मतलब डेथ सेंटेंस को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में चेंज करना, या तो डेथ सेंटेंस अगर ये दिया गया है कि उसको कल फांसी होने वाली है तो हो सकता है वो उसको टाल के 3 महीना कर दें कि 3 महीने के बाद इसको फांसी दी जाएगी। नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर। इन केस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन इन द कंट्री और इन 1 और मोर स्टेट्स। ये वही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है जिसकी बात की जा रही थी कि गवर्नमेंट के फंड से या कंटीजेंसी फंड से प्रेसिडेंट मनी अप्रूव कर सकते हैं जब इमरजेंसी होता है तब। बट कुछ इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी पावर लग जाता है। आइए देखते हैं क्या है। द प्रेसिडेंट हैज़ बीन इंश्योर्ड विद सर्टेन इमरजेंसी पावर। दिस कैन हैपन इन 3 सिचुएशंस। नंबर 1 इन नेशनल इमरजेंसी, जब देश में इमरजेंसी लगता है तब। breakdown of constitutional machinery in a state emergency, and financial. First one is national emergency. If the security of the country is threatened by war or external aggression, अगर कंट्री का सिक्योरिटी थ्रेटेंड होता है, थ्रेटनमेंट इफ इट इज़ इन प्रॉब्लम बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रीगेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स और एक्सटर्नल अटैक or internal armed rebellion or some protest or riot, the president can declare a state of emergency for the whole country. It means national emergency, पूरे country के लिए वो emergency लगाते हैं। state of emergency means state is not state राज्य, state is situation, it is situation of emergency for the whole country. Next is number 2, breakdown of constitutional machinery in a state. If the government of a state is not being run in accordance with the constitution, the president can declare emergency in the state. कहता है if government of a state is not being run in the accordance with the constitution, अगर ये फील हो या फिर अगर ऐसा डिक्लेयर हो जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, then the president can declare emergency in
the particular state or in that respective state. It is also called imposition of president rule in a state. It is also called imposition of president rule in a state. जब हम लोग कहते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, वो वाला चीज़, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में लगा था 370 और 370A और 35A हटने के पहले। जब 370 और 35A हटने वाला था उससे पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे लगा था। नेक्स्ट इज फिनेंशियल इमरजेंसी, व्हेन द फिनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड, या फिर व्हेन द फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी एग्जिस्ट इन द कंट्री, देन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ फिनेंशियल इमरजेंसी। इट मीन्स प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर देते हैं कि स्टेट में फिनेंशियल इमरजेंसी होगा। क्यों? क्योंकि कंट्री में फिनेंशियल इमरजेंसी होगा। क्यों? क्योंकि जो सिचुएशन है वो फिनेंशियल प्रॉब्लम, फिनेंशियल थ्रेट से सफ़र कर रहा है। द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, कहता है प्रेसिडेंट का इमरजेंसी पावर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। सी और ही कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको रिटन एडवाइस देते हैं तभी वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट होता है जब प्रेसिडेंट खुद से पूरा डिसीजन लेते या फिर पूरा का पूरा अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होता तब। बट एक्चुअली हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं एंड द रियल हेड और द रियल एग्जीक्यूटिव इज प्राइम मिनिस्टर। Although the position of the President of India is just nominal, the Constitution recognizes her or his position as one of the authority and prestige. Although the position of the President of India is just nominal, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, the position of President is also nominal और President is also known as nominal head. The Constitution recognizes her or his position as one of the authority and प्रेस्टीज। बट कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है वो प्रेस्टीज वाला होता है या प्रेस्टीजियस होता है एंड अथॉरिटी वाला होता है। नेक्स्ट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years बाई ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाई द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, द सेम प्रोसेस same as the president in accordance with the proportional representation system. The vice president is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio chairman क्यों कहा गया? Because vice president is in the post of vice president. ये जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन भी। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, मतलब एडिशनल चार्जेस। सी और ही परफॉर्म द सेम फंक्शन इन राज्यसभा एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा डज। जो लोकसभा के स्पीकर का काम होता है वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन का काम होता है। अब हम लोग राज्यसभा का स्पीकर नहीं बोल देंगे इसको, ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ही कहलाएंगे। सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, सी और ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन दी वोटिंग इन दी हाउस। कहता है सिंस द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट अगर राज्यसभा का मेंबर नहीं भी है, सी और ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग इन द हाउस, तो भी वो राज्यसभा के हाउस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। हाउएवर इन द केस ऑफ टाई, सी और ही कैन बी एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट। कहता है अगर वोट कास्ट होता है या फिर कभी ऐसा सिचुएशन होता है, अभी तक ऐसा सिचुएशन कभी हुआ नहीं है, बट अगर ऐसा सिचुएशन हो कि किसी बिल को पास करने के लिए इक्वल वोट दे दिया गया हो, इट मीन्स समथिंग मान लेते हैं 100 वोट फेवर में मिला हो, बाकी लोग एब्सेंट रहे हों, तब उस समय वाइस प्रेसिडेंट का जो वोट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ये जिसके तरफ वोट करेंगे वो विनिंग होगा। फॉर एग्जांपल 100 and 100 फेवर एंड अपोज में, ठीक है, ये इक्वल हो गया। अगर वाइस प्रेसिडेंट इसके तरफ वोट देते हैं तो ये 101 हो जाएगा, इसके तरफ वोट देंगे तो ये 101 हो जाएगा। दैट्स वाई एट दैट टाइम द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज वेरी important. Next is whenever the office of the president falls vacant,
ड्यू टू द डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट द वाइस प्रेसिडेंट टेक ओवर एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट टिल अ फ्रेश इलेक्शन इज हेल्ड। कहता है व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो, देन डेथ हो गया हो या फिर रजिस्ट्रेशन दे दिया हो, इम्पीचमेंट हो से निकाल दिया गया हो, द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एज द ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट टिल अ फ्रेश इलेक्शन हेल्ड। जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होता तब तक वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे काम करेंगे। द न्यू प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड विद इन 6 मंथ, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं प्रेसिडेंट वाले पॉइंट में। एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू ऑल द पावर, प्रिविलेज एंड एमोल्यूमेंट्स ड्यू टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सैलरी मिल रहा है, एमोल्यूमेंट्स मिल रहा है, उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, जो प्रिविलेज मिल रहा है, वो सारा कुछ वाइस प्रेसिडेंट को मिलेगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके तरफ से हो सकता है कि क्या सर वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं एंड वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं, तो दोनों जगह का उनको सैलरी मिलेगा? नहीं, उनको प्रेसिडेंट के पोस्ट का सैलरी तब तक मिलेगा जब तक वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट के वर्क में या उनके पोस्ट पे काम करेंगे, तब तक उनको वाइस प्रेसिडेंट का जो सैलरी है वो नहीं मिलेगा। फिर जब फ्रेश प्रेसिडेंट इलेक्शन हो जाएगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट अपने जगह पे चलेंगे, तो उनको फिर वाइस प्रेसिडेंट वाला जो सैलरी या जो एमोल्यूमेंट्स है, जो फैसिलिटीज़ है, वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इस चैप्टर में वाइस प्रेसिडेंट के पॉइंट तक ही देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लेकिन उससे पहले डू यू नो देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड द गवर्नर इंजॉय अ सिमिलर पोजीशन इन द स्टेट। अब देखो एक चीज़ छोटा सा बता दे रहे हैं, क्या है, ध्यान से सुनेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो चांसलर होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल लेवल का यूनिवर्सिटी जितना भी होगा उसके वाइस चांसलर, उसके जो चांसलर होंगे वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। एंड द गवर्नर इंजॉय द सिमिलर पोजीशन इन द स्टेट, गवर्नर इंजॉय करेगा क्या, सिमिलर पोजीशन इन द स्टेट, मतलब स्टेट का यूनिवर्सिटी। जैसे झारखंड का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और झारखंड जो है वो रांची में है, तो वहाँ के जो चांसलर होंगे वो हमेशा गवर्नर होंगे। अगर गवर्नर चेंज हो गई या गवर्नर चेंज हो जाते हैं तो जो नए गवर्नर अपॉइंट होंगे वो वहाँ के चांसलर बन जाएंगे। मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के चेयरमैन चांसलर, झारखंड के गवर्नर, बिहार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के चांसलर, गवर्नर ऑफ बिहार। ओके, बस तो फिलहाल इतना ही है वाइस प्रेसिडेंट तक में। नेक्स्ट हम लोग यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखेंगे अगले वीडियो में। ओके, तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे और बाकी वीडियो जो है वो आप लोग कोशिश करो पूरा देखने का। बीच में पार करके देखोगे तो हो सकता है जो मेन चीज़ है वो छूट जाए, ठीक है, और ये आप लोग का क्वेरीज रह जाता है। सो ट्राई टू वॉच द होल वीडियो। और प्रॉब्लम होता है एक साथ 20 मिनट 25 मिनट स्पेंड करने का, तो डाउनलोड कर लो, 2 मिनट 3 4 5 मिनट करके ब्रेक कर करके भी देख सकते हो। ओके, जैसे 2 मिनट देखे तो उसका नोट्स थोड़ा सा कॉपी में लिख लिए, फिर आगे का 4 मिनट देखे तो उसका कॉपी में कुछ नोट्स लिख लिए। तो इस तरह से अगर खुद का प्रिपरेशन करेंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे, तैयारी करेंगे, देन इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।